हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Three tier structure of Panchayati Raj. There is a most important for the all class. There are 11 CBSE and also BA class. And UP Bihar board is also a most important here. The three tiers structure of Panchayati Raj. There is the first point is a three tiers here of Panchayat at a village level. That is the most important. There is a first point of three tiers. This is the basis of the grassroots level of Panchayati Raj. The Panchayat for the village are a group of village included. There is a Panchayati at a village level. There are three types. The Gram Sabha, the symbol of direct democracy, Gram Panchayat and Nyay Panchayat. There is a three part of Panchayat at a village level. There is a first point of three types of structure here, Panchayat at a village level. There is a first here, Panchayat at a village level is a Gram Sabha. The Gram Sabha here, recognized of the Gram Sabha is an institution of the direct democracy, is an important feature of 73 amendment. The Gram Sabha consists of all adult residents within a village or group of the villages, and thus it is the only institution of the direct democracy in the country. Generally, two meetings of Gram Sabha are held every year. In this meeting, their Gram Sabha as the general body of the people here annual statement of account. The related there is the administrative report of Panchayat. It's also recommended new development project to be undertaken by Panchayat. It's the most important line. They note down your note copy, and it also help in the identify the poor people of the village so that there may be given a economic assistance. And the next point here, a gram level, the Gram Panchayat. The second point here, the first point, their lower tier of the Panchayati Raj system in the country in the village level, Panchayat. It is known as the most of state is a Gram Panchayat. The member of Gram Panchayat are directly elected by the people. There is a note down the point here, directly elected by the people. The number of member of Gram Panchayat is a fixed on the basis of the village population. Note down that this point is the most important here. The basis of the village population is the most important. The fix of Gram Panchayat is the fix here of village population. And it is different from to the Panchayat. At the Panchayat, the election is held on the basis of the single member constituency. This point is also important here. As I already mentioned, 1/3 of the total number of seats are reserved for a woman and some of the scheduled caste. There is the most important point here. There is seat of reserved for the woman. There is most important. 1/3 seat are reserved for the woman, and also scheduled caste and tribes include 1/3 of women of scheduled caste and tribes here. There is a most important line here. And chairperson of the Gram Panchayat are called by different names the different state as a Sarpanch, Pradhan, या President. There is the most important. There is a name of different name for the different state. Sarpanch, Pradhan, or President. There is a vice chairperson also is called here, but they are elected by the member of the Panchayat. There is a member of Panchayat selected by the chairpersons. The Gram Panchayat generally hold their meeting once of a month, and Panchayat at all level constitutionally committee for transactions of their business. The next important here is the part of first, there are Nyay Panchayat. And these are judicially Panchayat and the remainder of assent village. Panchayat that settles local debts. They are set up to provide speedily and inexpensive justice. Dedication of the Nyay Panchayat varies from state to state. One such a Panchayat is a set up to 5 or more Gram Panchayat. There is a 10 of the between 3 to the 5 year as determined by the state is a law. The Nyay Panchayat generally deal with the petty civil and criminal case, and case impose fine into rupees 100 only. There are no lawyers to the pleaded to the case in the Nyay Panchayat, and party to be a debtor agree there is a open case. There is a most important point here. There are debtor agree there is a open case on people. The three tier here, the second
point here, panchayat samiti. There is a part of 3 tiers here. Second point is a panchayat samiti. Note down, second point here, panchayat samiti. The second or middle tier of the panchayati raj is a panchayat samiti, which is a provide as a link between gram panchayat and jila parishad. This is the most important. Note down the line of your copy. The strength of the panchayat samitis also depend on the population in a samiti area. In a panchayat samiti, some members are directly elected. Sarpanch of gram panchayat are ex offices of member of panchayat samitis. However, all the sarpanch and gram panchayat are not be member of panchayat samiti at the same time. The number varies from state to state and the rotated annually. It's mean to that only a chairperson of some gram panchayats in a samiti area and member of panchayat samiti at a time. In some panchayat, member of legislative assemblies and legislative council as well as a member of parliament who is a belong to a samiti area co-opted and it's a member. Chairperson of Panchayat Samiti are generally elected from among their directly elected to the member. The third point here, a 3 tier of Panchayati Raj, there are third point here and third tiers. Jila Parishad is the district level of the uppermost tier of the Panchayati Raj system. This institution has some directly elected to the member was the number different from a state to state as it is also based on population. The chairperson of Panchayati Samiti are ex-official member of Jila Parishad. The member of Parliament, Legislative Assembly and Council belonging to their district are also nominated member of Jila Parishad. The chairperson of Jila Parishad is called to the Adhyaksh or President is elected from among the directly elected member. The vice chairperson is also elected to the similarly. The Jila Parishad is a meeting are conducted once a month. There is the most important. There is a Jila Parishad meeting are the conducted once a month. A special meeting can be also be convened the discuss of a special matter, subject and committees are also formed. Here the one point is coming to the is a time to time ex officio. What do you mean by ex officio here? A person who is held on the office not because she is elected to the post but is a virtual of their fact that she is held another office. दोस्तों यहाँ पर जो आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज के 3 सत्र। देखिए ये एग्जामिनर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा रहा है और ये 11वीं क्लास सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ में बीए वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है जिनके सिलेबस में जो है 3 टायर्स ऑफ पंचायती राज है। यानी कोई भी बोर्ड की क्लास के बच्चे हों अगर उनमें जो है 3 टायर ऑफ पंचायती राज है यानी पंचायती राज के 3 सत्र है तो ये चैप्टर काफ़ी उनके लिए जो टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यही बात बताया गया है ग्राम स्तर पर पंचायत। देखिए सबसे पहली बात तो यही आता है ग्राम स्तर पर पंचायत। ये पहला जो है त्रिस्तरीय के ऊपर पंचायती राज का पहला पॉइंट है कि ग्राम स्तर पर पंचायत राज का क्या होता है। देखिए ये पंचायती राज का आधार अथवा आधारभूत स्तर माना जाता है। किसी एक गांव अथवा गांव के समूह के लिए पंचायत में ग्राम सभा होना जरूरी होता है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रतीक होता है। उसके पश्चात होता है ग्राम पंचायत होती है। तो ये सारे के सारे जो है काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट है। पहले पॉइंट के अंतर्गत जो हमारा दोस्तों आया है ग्राम सभा। देखिए ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा यही बताती है 3 टायर्स के पहले पॉइंट के पहला पार्ट की रिगार्डिंग कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्था ग्राम सभा के मान्यता देना और 73वें यानी 73वें संशोधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। यानी जब संशोधन हुआ तो जो है ग्राम सभा को जो है प्राथमिकता दी गई और इसके रिगार्डिंग संशोधन भी किया गया जिसको इसमें सम्मिलित किया गया 3 टायर्स के अंतर्गत। गांव के सभी व्यास निवासी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यानी कोई भी जो व्यक्ति हो चुका हो वो ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। अंततः देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अकेली संस्था मानी जा सकती है। सामान्यतः ग्राम सभा की वर्ष में 2 बैठकें सभाएं होती है और इन सभाओं में ग्राम सभा लोगों की आम सभा होने के नाते पंचायतों की वार्षिक आय व्यय का विवरण रखता है। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए
कि यह सभा होने के नाते पंचायतों की वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा रखता है, लेख परीक्षण रखता है और पंचायत की प्रशासनिक रिपोर्ट को भी सुनाती है। यह पंचायतों द्वारा लिए जाने वाले सभी विकासात्मक परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान करता है। यानी जो भी विकासात्मक परियोजनाएं बनाई जाती हैं, प्लान बनाई जाती है, उसको जो है स्वीकृति प्रदान करना ग्राम सभा का ही कार्य होता है। यह गांव के गरीब लोगों की पहचान करने में भी काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं। भाई देखिए, ये ग्राम सभा है तो ग्राम सभा ही ग्राम के लोगों के बारे में जान सकता है और उसका जो है गरीबों को पहचान करने में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहता है, ताकि उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जा सके। देखिए, जब तक आप गरीब लोगों की पहचान नहीं कीजिएगा तब तक उनकी आर्थिक सहायता करना संभव ही नहीं है। इसलिए ग्राम सभा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देता है। 3 टायर के फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है ग्राम पंचायत। देखिए, पहले पॉइंट के लेवल की रिगार्डिंग जो है अगर हम देखें दूसरी पॉइंट यहाँ पर ग्राम पंचायत की, तो देश में पंचायती राज का निचला सतर ग्राम स्तरीय पंचायत है। यानी देखा जाए तो देश में पंचायती राज का निचला सतर हमेशा ही ग्राम स्तरीय पंचायत होती है और अधिकांश राज्यों में इसे ग्राम पंचायत के रूप में जाना भी जाता है। यानी इसको हम ग्राम पंचायत के रूप में जानते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और ग्राम पंचायत के सदस्य की संख्या को गांव की जनसंख्या के आधार पर ही निश्चित की जा सकती है। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको जो है नोट डाउन करने की आवश्यकता है और यही एग्जाम में आपको लिखना भी है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या गांव की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। ये पॉइंट कई जगहों पे आप लिख सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे तेज होते हैं वो इंपॉर्टेंट बात को नोट डाउन कर लेते हैं। अंततः ये प्रत्येक गाँव के लिए भिन्न भिन्न होती है। एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र के आधार पर चुनाव करवाए जाते हैं। यानी वही होता है सिस्टम जो आपको पता ही है, एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र के आधार पर चुनाव करवाने जाने के प्रावधान किया जाता है। जैसे कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि कुल सीटों की संख्या का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित। देखिए, ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कई जगह आप पॉइंट डाल सकते हो क्योंकि ये सभी जगह उपलब्ध है कि महिलाओं को आरक्षण दी जाती है। अब देखिए, ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं उनमें भी सीटों में जो महिलाओं के लिए 1/3 सीट जो होती है आरक्षित होती है और कुछ अनुसूचित जाति भी इसमें सम्मिलित होती है, जिनमें जनजातियों के लिए 1/3 अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए जो सीटें होती है वो आरक्षित कर दी जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है। अलग अलग राज्य में ग्राम पंचायत का अध्यक्ष अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो ये जर्नली सी बात है, भारत है तो यहाँ पर आपको पता ही है कि हर क्षेत्र में सभी को कुछ न कुछ अलग नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए अध्यक्ष को यहाँ पर जो है सरपंच भी कह सकते हो, प्रधान भी कह सकते हो या मुखिया भी कह सकते हो। ये कोई भी नाम से आप पुकार सकते हो। ये जिस क्षेत्र में आप रहते हो उसी नाम से आप जानोगे उसको। और साधारण तौर पर देखा जाए तो उसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है। यानी सब जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट भी होता है, सब प्रेसिडेंट, यानी एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। दोनों ही पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, यानी पंचायत के सदस्य द्वारा ही चुने जाते हैं जो जीत के जाते हैं। ग्राम पंचायत साधारणतः महीने में एक बार अपनी बैठक करती है, जो कि जरूरी भी है। महीने में एक बार बैठक होती है और पंचायत सभी सदस्यों पर अपना काम चलाने के लिए समिति के से गठित होती है, जुड़ी हुई होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जो हमारा जो है थ्री टायर का सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, यानी त्रिस्तरीय का जो है दूसरा पॉइंट क्या कहता है, चलिए देखते हैं। दूसरा पॉइंट के अंतर्गत जो है पंचायती समिति आती है। यानी पंचायत समिति जो कि 3 टायर के दूसरा पॉइंट के रूप में है। पंचायती राज का दूसरा अथवा मध्य स्तरीय पंचायत समिति भी कहते हैं, यानी मध्य में रहने वाला पंचायत समिति जो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच ही कड़ी कार्य करता है। देखिए, ग्राम पंचायत और जिला परिषद यानी हमारा 3 टायर्स होती है, जिसमें पहला आता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। ये 3 टायर है और 3 टायर के मध्य जो होती है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति एक तरह से देखा जाए तो जो है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के जोड़ के रखती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा बात। पंचायत समिति की सदस्य संख्या भी सीमित क्षेत्रों की जनसंख्या पर ही निर्भर करती है। देखिए, ये भी बात इंपॉर्टेंट आ गया ना कि ये जो नोट करने वाली बात है कि पंचायत समिति के सदस्य की संख्या भी जो है उस क्षेत्र की जनसंख्या पर निर्भर करता है। उस क्षेत्र में जितनी जनसंख्या होगी उतने ही सदस्य जो है होंगे पंचायत समिति में निहित होंगे। पंचायत समिति में कुछ सदस्य सीधे ही निर्वाचित हो जाते हैं। ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पंचायत समिति में अगर कुछ सदस्य जो होते हैं डायरेक्ट जो होते हैं निर्वाचित हो जाते हैं, यानी डायरेक्ट चुन लिए जाते हैं।
ग्राम पंचायत के अध्यक्ष पंचायत समिति के पदोन्नत सदस्य होते हैं, परंतु सभी पंचायतों के अध्यक्ष एक ही समय पर पंचायत समिति के सदस्य नहीं हो सकते। इसका अर्थ यह है कि एक समय पर कुछ ही ग्राम पंचायत के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। कुछ पंचायतों में क्षेत्र से संबंधित विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों और सांसदों को भी जो है सम्मिलित सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रायः प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों में ही चुन लिया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं हमारा जो है तीसरा पॉइंट, जिला परिषद। आखिर जिला परिषद में है क्या, जो कि बहुत काफ़ी नीचे आती है। देखिए जिला परिषद आखिर है क्या। जिला परिषद पंचायती राज का सबसे उच्च सदर होता है। देखिए अगर हम इसको डायग्राम फ्लो करें तो सबसे ऊपर वो रहेगा, उसके बाद ये रहेगा और जिला परिषद नीचे आएगा, लेकिन ये नीचे नहीं है, ये सबसे ऊंचा है और सबसे जो है विश्वसनीय भी है, इसलिए इसको नीचे जरूर रखा गया। अगर हम डायग्राम फ्लो देखें तो इसको नीचे जरूर रखा गया है, लेकिन कहते हैं ना जो नीचे होता है वो पावरफुल होता है, उसका मध्य वाला होता है उसके पावरफुल होता है, और उसके बाद जो लास्ट में ऊपर होता है वो कम पावरफुल होता है। तो जिला परिषद काफ़ी उच्च स्तर के होते हैं और इसमें बहुत काफ़ी पावर भी होती है। इस संस्था के अलग कुछ सदस्य जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, जिनकी संख्या एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग होती है। यानी तो जनरल सी बात है कि एक राज्य में कुछ और होगी, दूसरे राज्य में कुछ और होगा, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि जनसंख्या जितनी होगी उतने ही जिला परिषद के सदस्य भी होंगे, जिसको मैंने पहले ही कहा था कि हर जगह ये पॉइंट आपका चल सकता है। पंचायत समिति के अध्यक्ष जिला परिषद के जो है पदेन सदस्य होते हैं और जिला से संबंध रखने वाले संसद, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को भी जिला परिषद का सदस्य नामांकित किया जा सकता है। जिला परिषद के चेयरपर्सन, जिसे हम अध्यक्ष कहा जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। वाइस जो है चेयरमैन या उपाध्यक्ष को भी इसी प्रकार चुना जाने का प्रावधान किया गया है। जिला परिषद की मीटिंग मास में एक बार की जाती है और विशेष मामलों में चर्चा के लिए विशेष बैठकों की जा सकती है। विशेष समिति भी इसमें अपनाई जाती है। इसमें एक शब्द जो है बार बार आ रहा है, वो है पदेन सदस्य। इसका अर्थ क्या है? देखिए, इसलिए पद नहीं होता है कि उसे निर्वाचित किया गया है, अतुल इसके पास दूसरा कोई पद होने के कारण वह पद का हकदार होता है। तो ये पदेन सदस्य के रूप में यहाँ पर लिया गया है, जिसको आपको समझ लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जो है हम पंचायती यानी 3 टायर्स के जो है विशेषता के ऊपर प्रकाश डालेंगे। The most important topic of 3 tier. There are 3 tiers here. Function. What is the function of the 3 tier here? There is a function of the Panchayati Raj institution. There is the most important topic here. All the Panchayati Raj institution perform such a function as the specific state as a law relating to Panchayati Raj. Generally speaking, of the function are under the first point here. Functions of the Gram Panchayat. What is the function of the here Gram Panchayat? The some state relationship between to the obligator or compulsory and optionally function of Gram Panchayat. Well, other states do not make these distinctions. The civil function relative to the sanitation, cleaning of public road, drain and ponds, public toilet and toiletries, primary health care, vaccination, supply of drink water and construction of public well, street lighting, social health and primary and adult education, etc. There is a work function of the Gram Panchayat. Or obligatory function of the village Panchayat, the optionally function depend on the resource of the Panchayat, and they may not be performed such a functions as the 3 plantations on the roadside, setting up the breedings, center of the cattle, organized child and the maintenance of welfare, promotion of agriculture and etc. There is a function of Gram Panchayat. After the 73 amendment, the scope of function of Gram Panchayat was widened. Such an important function like preparation of annual development plan of Panchayat area, annual budget, relief in the natural calamities, and the removal of the encroachment of public land. Implementation here and the monitoring of poverty alleviation programs are now expected to be performed by the panchayats. Selection of the beneficiaries through the Gram Sabha public distribution system, non-conventional energy source, and improve a chula biogas plant have also been given a Gram Panchayat in some state. The next function here,
The function of the Panchayat Samiti. There is a three tiers here. Is a middle. There is a function of Panchayat Samiti. Panchayat Samiti are at the hub of the developmental activity. There is a hub of developmental activity, and their head of the block of department officer is a BDOS. Some function are the interested to be them, like agriculture, land improvement, and watershed development, and social, and the form is a forestry, technical, and vocational educations. The second type of function related to their implement of some specific plan. Scheme are programmed to be with which fund are earmarked. It is a mean to that a panchayat samiti has to spend money only on the specific project. This choice of the location and beneficiaries is however available to the panchayat samiti. The third tier here, the function of Jila Parishad. There is a third tier is a function. Jila Parishad linked to Panchayati Samiti with the district. It is a coordinate, there is activity and the supervise, there is a functioning. It is a prepare district plant and integrated to the Samiti plant into a district's plant for a submission to the state government. Jila Parishad look after development work in the entire district. It is an undertake team to improve the agriculture production, exported and ground state water resource, extend rural is electrification and distribution of the initial of implement generating to activity, construction, road and other public work. It is also performed to welfare function like a belief due to natural is a calamities and the scarcity, establishment of the orphanages and the poor home, night, shelter and welfare of women and children, etc. In addition, Jila Parishad perform a function instituted to them under to central and state government sponsored program. For example, Johar Rozgar Yojana. Johar Rozgar Yojana is a big central sponsored scheme for which money is directly given to be district to undertake employment generating activity. यहाँ पर जो हमारा बताया गया है कि थ्री टायर्स के जो है फंक्शन, देखिए जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है उसका क्या कार्य प्रणाली है ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, क्योंकि कार्य प्रणाली आपको पता है कि वही होता है जो शहरों में म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन का होता है। तो आप यहाँ पर समझदार हो तो यही बात जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पंचायती राज्य संस्थाओं की कार्य जो होती है, पंचायती राज संस्थाओं के वे सब कार्य करते जिन्हें राज्य कानून में पंचायती राज्य के लिए निर्धारित किया गया है। सामान्य रूप से इसके कार्य जो है कुछ इस प्रकार है। अगर हम पहले टायर्स की बात करें यानी पहले सत्र की बात करें तो ग्राम पंचायत के कार्य होते क्या है। देखिए ग्राम पंचायत कार्य क्या होगा, कुछ राज्य ग्राम पंचायत के अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य में भेद करते हैं जबकि अन्य राज्य ऐसा नहीं करते हैं। सफाई, सार्वजनिक सड़कों की सफाई, सार्वजनिक कुओं का निर्माण, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था, सामाजिक स्वास्थ्य तथा प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा इत्यादि से संबंधित नागरिक कार्य ग्राम पंचायत के अनिवार्य कार्य, ऐच्छिक कार्य पंचायत के संसाधनों का निर्भर करते हैं। वह ऐसे कार्य तथा अन्य नहीं कर सकते हैं जैसे कि सड़कों दोनों को वृक्ष लगवाना, पशु प्रजनन केंद्र स्थापित करना, बाल और प्रसूति कल्याण केंद्र स्थापित करना, कृषि को बढ़ावा देना इत्यादि। देखिए ये सारे कार्य जो है जनरली आपको पता ही है कि हमारे अगर शहरों में रहते हैं तो म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन द्वारा कई कार्य जो है संपन्न की जाती है। तो ये सारे कार्य जो है ग्राम पंचायत कार्य के अंतर्गत भी आता है, तो ये आपको लिए जो होगा याद करना बहुत काफ़ी आसान हो जाएगा। यदि बात करें 73वें संशोधन के बाद ग्राम पंचायत कार्य का क्षेत्र विस्तृत हुआ है और पंचायत क्षेत्र के वार्षिक विकास योजना बनाना, ठीक है, ये भी कार्य उसमें सम्मिलित है। वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य करना, सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण हटाना, गरीबी हटाने के कार्यक्रम को लागू करना। देखिए गरीबी हटाने का सब कार्यक्रम जो है इसमें भी सम्मिलित है। कहते हैं हमारे संविधान में हर चीज़ का प्रावधान है लेकिन वो सुचारू रूप से चल नहीं पाती है क्योंकि बहुत सी चीज़ जो जगह लोग जो होते हैं करप्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर वो सारी बातें लिखी गई है जो हमारे देश के लिए विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे गरीबी हटाने के लिए कार्यक्रम की बात कर रखा हो या देख रेख करने जैसे कार्यक्रम पंचायत द्वारा किए जाने की आशा की जाती है। ग्राम सभा के मध्य से लाभान्वित होने वाले चयन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत
या पारंपरिक चूल्हे बायोगैस प्लांट्स भी कुछ राज्यों में ग्राम पंचायत में सौंप दिए गए हैं, जहां पर ये सारे जो है गरीब लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। उसके पश्चात दूसरे टायर के अंतर्गत आता है दूसरा हमारा जो था पंचायत समिति के कार्य। देखिए पंचायत समिति के कार्य क्या होता है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। पंचायत समिति विकास कार्य का केंद्र माना जाता है, यानी पंचायत समिति में सारे विकास के केंद्र होते हैं, कार्यक्रम बनाए जाते हैं। ब्लॉक विकास अधिकारी उनके शीर्ष पद पर होते हैं। कृषि भूमि सुधार हो या पानी का संग्रह का विकास हो, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि जैसे कार्य इनको ही सौंप दिए गए हैं। दूसरे प्रकार के कार्य का संबंध कुछ विशेष योजनाओं को लागू करने से भी होता है, जिसके लिए धनराशि निश्चित होती है। इसका अर्थ यह है कि पंचायत समिति को निश्चित परियोजनाओं पर पैसा खर्च करना होता है। स्थान अथवा जो लाभ योगी को चुनने का अधिकार भी पंचायत समिति के पास ही उपलब्ध होता है। अब हमारा जो पॉइंट होगा तीसरा पॉइंट, जो कि अंतिम होगा, आपको पता है कि तीसरा पॉइंट 3 टायर्स के अंतर्गत आएगा। तीसरा पॉइंट जिसमें हम जिला परिषद के कार्य के विषय में चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या है हमारा जो तीसरा पॉइंट आया है, जिला परिषद कार्य। देखिए जिला परिषद जिले की पंचायत समिति को जोड़ती है और यह उनकी जो है गतिविधियों के साथ तालमेल भी करती है, यानी गतिविधियों में तालमेल करना ही जिला परिषद का सबसे प्रमुख कार्य माना जाता है। उनकी कार्य प्रणाली का निरीक्षण भी करती है कि कैसे कार्य कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो सभी चीज़ों का निरीक्षण करना ही जिला परिषद कार्य माना जाता है। यह जिला की योजनाएं भी बनाती है और राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए समिति और योजनाओं का जिला योजनाओं में समाकलन भी करती है। जिला परिषद पूरे जिले के विकास कार्य को देखभाल भी करती है और यह कृषि उत्पादन बढ़ाने, भू जल संसाधनों के दोहन, ग्रामीण विद्युतीकरण के बढ़ाने तथा वितरण और रोजगार प्रदान करने वाले गतिविधियों को भी शुरू करने और सड़क बनाने अन्य सार्वजनिक कार्य को अपने हाथों में भी ले लेती है। यह प्राकृतिक आपदाएं एवं अभाव के दौरान राहत कार्य जैसे कल्याणकारी कार्य, अनाथालय और जो है निर्धन गृह, रैन बसेरे, महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याण इत्यादि कार्य भी जो है जिला परिषद के कार्य के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही जिला परिषद केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम को अंतर्गत किए गए कार्य को भी करती है। उदाहरण के लिए जवाहर रोजगार योजना केंद्र द्वारा अप्रायोजित एक बड़ी योजना है, जिसके लिए पैसा सीधे दिया जाता है और इसका उद्देश्य रोजगार के अवसर उपलब्ध भी कराना होता है। तो ये 3 टायर्स जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे हर एक क्लास के बच्चों के लिए। अगर जिनके सिलेबस में ये 3 टायर्स हैं, पंचायती राज के 3 टायर्स हैं, तो समझिए कि ये जो टॉपिक मैंने बताया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा और उनको करना भी चाहिए। ठीक है, अगर सिलेबस में है तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक जो था ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, तो उसको देखना मत भूलना। ठीक है, साथ में एक बात इंपॉर्टेंट जो जिसको आपको भूलना नहीं है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ जो है दूसरे बच्चे तक भी इस वीडियो को पहुंचाने का लक्ष्य रखना है। ठीक है, जब तक आप लक्ष्य नहीं रखिएगा तब तक कहते हैं जीवन में कोई सफलता सिद्ध नहीं होगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके। ठीक है, साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये रहता है जो कि बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि अगर आपको इस वीडियो में अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका सही है, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करके देखोगे कोई टॉपिक तो आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर का टॉपिक नहीं प्राप्त होगा। उसके जगह पे आपको जो यूट्यूब पे पहले से उपलब्ध टॉपिक होंगे वो आपको प्राप्त होगा। तो आप त्रिपाण स्टडी सेंटर की जो बातों से और विचारों से अवगत नहीं हो पाओगे। तो इसलिए अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखते हो तो आपको जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का होम पेज मिल जाएगा, जहां पर आपको वीडियो का ऑप्शन आएगा। वहां पर आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाएगा। जो आपके टॉपिक के रिगार्डिंग होगा उसको आप अपने मोबाइल में सेव करके जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और इससे लाभान्वित भी हो सकते हो।